this. I hope now I'm audible to you. Yeah. Fine. Yes, sir. And Proful, to you also. I'm audible. You can also hear me. Can you Yeah. also hear me? Okay. No, Proful, what about you? Proful, can you hear me? Proful, can you unmute yourself? I hope there's an issue. You can hear me. In case if you have any issues, you can raise your hand. Then we can solve the issues. So uh, let me start the session. I hope now you can see the screen. Can you see the screen? The screen is okay. Praful, you can also see the screen. You can also see the screen. I'm just sharing one small file, Excel file. So these are the topics written on the screen. So we will discuss the topics one by one. And before I start the session, let me introduce that we conduct the session in such a manner that we initially start with the question, with the theory part, then the question answer, then we focus on the filing of income tax return and TDS return. Fine. So our basic purpose is to focus on the practical aspect of day-to-day aspect, which is used for accountants or those who want to become tax consultant and they want to start their own tax practice. So this session is useful for them. Fine. Now, Gargi, is it? I mean, what is your qualification? Sorry, what is your I qualification? had an MBA. I had an MBA in finance. And graduation mein you are doing BCom or MCOM. I had an MCom? MCOM. Okay, good. So you are from commerce graduate. So Yeah. good. So I hope that the basic things about the income tax would be very clear to some extent. Yeah. Definitely. So if we say income tax is a direct tax, I hope Hmm. you understand the meaning of direct tax. Yes. Yes, sir. What is the difference between direct tax and indirect tax? Can you explain? Direct tax is directly it's laid in directly in the income, and indirect tax is it's like GST and like I can't. See, Direct tax we have to pay on income. huh? That is direct tax. See, government, it is the requirement, or you can say duty of the government to collect the taxes in form of direct tax or indirect tax. उनको direct tax या indirect tax से tax collect करना है. In indirect tax, you don't feel the burden, like you don't feel the problem. Means when the government says, government जब कहती है tax payer को कि मेरे को tax चाहिए, so there are two ways. One is taking indirectly and one is taking out directly. Fine. Suppose the customer goes and buy a car, उसको कार चाहिए, तो when he buys a car, तो कार के अंदर गवर्नमेंट जीएसटी लगा देती है और they charge VAT earlier. So you have to pay the tax since you are totally focused on the car because you are going to buy a car. You don't feel like अभी आपको ज़्यादा feel नहीं होता. You just pay the tax and you happily buy the car. Similarly, if you go to movie, when you are watching a movie, so you pay tax happily. You don't feel about, you don't bother about it. Similarly, अगर आप खाना खाने जा रहे हैं, you are paying GST on that. So when you eat food in the restaurant, you happily pay with a bill. But in case of direct tax, there is a huge evasion. Evasion का मतलब tax की चोरी है. Direct tax. Reason being because
when you are asking someone to pay tax directly on his or in her income, then there is a problem. Problem in the sense nobody wants to pay tax from his or her hard earned income. आपकी hard earned income है. Suppose you are earning 50,000 per month, for example. I think some more people are joining in. So when it comes to there is some problem with one of the participants who is using this Galaxy phone, I think. Anyway, I hope there are two more participants. You are Kumar Praful, right? I hope Kumar, am I audible to you? Can you hear me? You can hear me? Okay. So we were talking about income tax is a direct tax, and there is always a chance of more evasion, यानी कि टैक्स की चोरी ज़्यादा होती है in case of income tax. Why? Because nobody wants to share certain amount from his or her income. आपकी इनकम 50,000 है, but you don't want to pay tax. एक मैं चीज आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप लोगों ने सपोज इनकम अर्न करी, मंथली सैलरी ली, से 50,000, if somebody is asking you to pay 15,000, will you pay? आप पे करेंगे? आप पे करेंगे? Tell me. Gargi, you tell me, will you pay? Will you pay someone 15,000? No, not for any reason. Like income tax is a different thing, but 15,000 is a big amount to pay actually. Suppose if your near and dear asked to pay 15,000 every month, says your friends, near and dear friend asked to pay 15,000, 30% of it, will you pay? It is hard to accept to pay actually because 50,000 में से 15,000 चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा? ऐसा बचेगा क्या? नहीं, हाँ, so you would be reluctant to pay. Okay, anybody would be reluctant to pay. कोई भी व्यक्ति से आप 50,000 जो अर्न कर रहा है उसको बोलो 15,000 मेरे को दे दे, वो नहीं देगा. Very simple rule. And suppose you are earning say 1 lakh, and if person is asking you to pay 30,000 every month, will you pay? No. Reason is very simple, because nobody wants to pay hard earned income in the form of taxes. Fine. And if the amount is 1 crore, so it is very difficult to give 30 lakhs. Very difficult. Fine. So that is called income tax. Tax on your income, which nobody wants to pay. That is the simple reason कि इनकम टैक्स में इवेजन यानी कि कर की जो चोरी होती है बहुत ज्यादा होती है. फाइन. यू आर डायरेक्टली आस्किंग समवन टू पे, इनडायरेक्टली नहीं, यू आर आस्किंग डायरेक्टली समवन टू पे टैक्स, तो पे नहीं करता. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. नाउ all the income should have a source.
आपने पढ़ा होगा कि इनकम टैक्स के वैसे तो 5 सोर्सेज होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, फ्रॉम कैपिटल गेन, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम के 5 मेन सोर्सेज होते हैं। आपके पॉकेट में अगर पैसा आता है, इनकम आती है, तो उसका कुछ ना कुछ सोर्स होना जरूरी है। ठीक है। कैन देयर बी एनी इनकम वेयर यू डोंट हैव एनी सोर्स? कोई ऐसी इनकम हो सकती है जहां सोर्स ना हो? कैन यू गेस एंड टेल मी? आप गेस कर सकते हैं कोई ऐसी इनकम जहां पर सोर्स ना हो? आपको सैलरी इनकम मिल रही है, आपको टैक्स पे करना है। आपका कोई बिजनेस है, आपकी इनकम हो रहा है, आपको टैक्स पे करना है। आपके कोई रेंटल इनकम आ रही है, आपको टैक्स पे करना है। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, आपको टैक्स पे करना है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 लाख कैश आ गया कहीं से भी, रास्ते में से आपको एक बैग मिल गया 10 लाख का। ठीक है। यू डोंट नो अबाउट द सोर्स। फाइन। You don't know about the source and you don't want to tell about the source. In that case, what happened? उस केस में क्या होगा? If you are not able to tell about the source of any income, तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स दैट इज 30%। 30% आपको टैक्स पे करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू टेल अबाउट द सोर्स ऑफ द इनकम, अगर आप इनकम का सोर्स नहीं बता रहे, आपको नहीं पता, तो आपको 30% टैक्स देना है। आपको सोर्स का पता है, इफ यू नो द सोर्स, देन यू कैन क्लेम सर्टेन डिडक्शंस। ठीक है। एनी डाउट इन दिस? ठीक है। सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्स पेयर की, एसएससी की, टू टेल अबाउट द नेचर ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। आप नेचर ऑफ इनकम बताइए, सोर्स ऑफ इनकम बताइए, यू कैन क्लेम टैक्स, यू कैन क्लेम डिडक्शंस। नहीं बताएंगे, आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी। नंबर 1, सपोज you have received say 10 lakhs from someone, चोरी से आ गया, कहीं से भी आ गया, आपको सोर्स नहीं पता, you have to pay 3 lakhs as tax. If you want to make that income as white income, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया बट आपको सोर्स नहीं पता, आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 3 lakhs, 30%। फाइन। अगर आप लोग नहीं बता पाते, अगर आप कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, then there would be a penalty of 3 lakhs, another 3 lakhs. Your total tax liability would be 6 lakhs. It is only in case where you are not able to tell about the source of your income. If you tell, if you know, then you can claim deductions. आपके पास 10 lakh आ गया, कैश आ गया, you have deposited in the bank, you don't know about the source, you don't want to tell about the source, then your tax liability is around 3 lakhs. If you conceal, आप छुपा रहे हैं, 3 lakhs की और आपकी पेनल्टी लग जाएगी, टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी 6 lakhs की। आई होप दिस इज क्लियर। क्या तो क्लियर है? Yes, sir. नाउ what is previous year and what is assessment year? Can somebody tell me what is previous year and assessment year? Previous is a current year, which is 1920, and for the current year, assessment year is 2021. Assessment year is. What is the meaning of previous year and assessment year? Okay. I know 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 22 कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा।
ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? Previous year is I think वर्किंग ईयर फॉर दैट फॉर भी जिस ईयर के लिए हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो मे बी वो उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं. Second participant, can you tell me? Second, any idea? Assessment year is the year जब हम अपना सर कोई भी काम जो भी ईयर हमारा होता है जिसमें वर्किंग करते हैं, हाँ, उसकी एसएससी मतलब जो हम मूल्यांकन जो हम सोचते हैं लाइक मतलब हमारा जो थिंकिंग रहता है कि हाँ हमारा आगे वाले असेसमेंट में मतलब आने वाले ईयर में हमारा ये टैक्स एक बनेगा जो लमसम, उसको हम लोग एक असेसमेंट ईयर बोलते हैं. नहीं, रॉन्ग. आप थर्ड नंबर बता सकते हैं? थर्ड पार्टिसिपेंट, कैन यू टेल मी? आप बता सकते हैं थर्ड वन? एनीवे, देखिए, प्रीवियस ईयर, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं. प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम. इज द ईयर इन विच वी अर्न इनकम. इसके अंदर हम अपनी इनकम अर्न करते हैं. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए प्रीवियस ईयर starting from 1st April 2018 and going to 31st March 2019. This is the previous year. एक साल है starting from 1st April 18 till 31st 19. इस साल के अंदर जो हम इनकम अर्न करते हैं, that is called previous year और financial year. Clear? अब मैं आपसे पूछता हूँ, हम लोग टैक्स कब डिपॉजिट करते हैं? इनकम तो हमारी आ गई, सपोज 10 लाख हमारी इनकम है पूरे साल की, उस पर हमारा सपोज 2 लाख रुपए टैक्स भी बनता है, तो हम कौन से साल में कब डिपॉजिट करेंगे? कैन समबडी टेल मी? यस सर, जो कमिंग ईयर होगा, जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है उसमें हम लोग डिपॉजिट करते हैं. रॉन्ग. आप बताइए गार्गी. एडवांस टैक्स पे करते हैं हम लोग मार्च में. मार्च में? कब? 31 मार्च को? मतलब नहीं, Quarterly pay करते हैं 31 मार्च को नहीं, बट एडवांस मतलब बिफोर फाइनेंशियल एंड होता है उसको पहले हम लोग एडवांस टैक्स पे करते हैं. थोड़ा सा ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ. हम्म. दो टाइप के ब्रॉडली टैक्स पेयर्स हैं. वन इज सैलरीड क्लास, अनदर इज बिजनेसमैन या उसका कोई और इनकम हो सकता है. फॉर एग्जांपल, पहला हम केस लेते हैं सैलरीड क्लास का. फाइन. लेट अस अज्यूम आपको 1 लाख पर मंथ सैलरी मिल रहा है. ठीक है, आपके जेब में 12 लाख आ गया. फाइन. उसके ऊपर आपका सपोज 2 लाख आपका टैक्स बनता है. फाइन. तो आपको धीरे धीरे 2 लाख डिपॉजिट करना है एवरी मंथ. फाइन. अब आप कोई भी जिसके हाथ में पूरी सैलरी आ जाएगी, वो 20,000 रुपीज पर मंथ जाके गवर्नमेंट के घर में डिपॉजिट नहीं करेगा, बैंक में जाके नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? उसके जेब में बचेंगे ही नहीं, सारे पैसे खर्च कर देगा. ही विल स्पेंड ऑल द मनी. उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा. ही विल हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस. सर पैसा नहीं बचा, सर मेरी EMI चली गई, सर बच्चे की फीस दे दी, आई हैव नो मनी लेफ्ट. हर एक का ऑप्शन. तो मंथ एंड में उनके पास पैसा नहीं बचता. फाइन. तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू इज दे विल आस्क द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट द टैक्स, यानी कि उसको पूरी सैलरी नहीं देना. तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, आउट ऑफ मंथली सैलरी दे विल बी डिडक्टिंग द इनकम टैक्स. नंबर 1. नंबर 2, tax has to be calculated on estimate basis. estimate basis का मतलब ये है कि पहले महीने आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है, आपको पता है सबको. मान लिया 1 लाख पर मंथ है, पूरे साल की सैलरी कितनी है? 12 लाख हो जाएगा. फाइन. उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए with the help of tax rates given to you.
जो भी टैक्स आएगा उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। वो मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी कॉल्ड एज टीडीएस। इट विल बी कॉल्ड एज टीडीएस which the employer has to deposit every month. यहाँ तक concept clear है? Any doubt? Second comes, if you are not a salaried class person, then second case क्या है, आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन हो सकता है। हाँ, आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन हो सकता है। इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, आपको जो भी टैक्स डिपॉजिट करना है वो सेम ईयर में करना है, इन द सेम ईयर इन विच यू आर अर्निंग द इनकम। जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसी साल में डिपॉजिट करना है, नेक्स्ट ईयर में डिपॉजिट नहीं करना, जैसे आपने पहले बोला। तो यू हैव टू पे टैक्स इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है? Suppose you are a businessman, you are a self-employed person, you are earning some income. In that case, you have to means the taxpayer has to calculate himself, herself about the tax liability. बाहर से कोई नहीं आएगा, गवर्नमेंट नहीं बताएगी, आपको खुद कैलकुलेट करना है। फाइन, वो भी करना है on the basis of estimation. On the basis of estimation, you have to calculate your total income. But because you are not a salaried class person, आप salaried class person नहीं है, in that case आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना है आपको खुद को करना है और आपको उसी साल में डिपॉजिट करना है। उसी साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर में ही डिपॉजिट करना है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर असेसमेंट ईयर। नाउ लेट मी explain with the help of sheet. For example, there is a previous year which starts from 1st April 2018, it goes up to 31st March 2019. ये पूरा आपका हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इसमें हम जो भी इनकम अर्न करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन जो भी इनकम अर्न करेगा, he will calculate his or her liability on estimate basis. Estimate basis का मतलब आपको जो भी टैक्स निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टोटल इनकम है दैट इज अराउंड से अगेन 10 लाख, इसको 18 लाख कह देते हैं। 18 लाख के ऊपर कुछ ना कुछ आपका टैक्स बनेगा। ठीक है? और 18 लाख आपको डायरेक्ट पता नहीं लगेगा, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। फर्स्ट मंथ में आपके प्रॉफिट कितने हैं, 1 to 1.5 लाख। सेकेंड मंथ में प्रॉफिट कितने हैं, 2 लाख। थर्ड मंथ में कितने प्रॉफिट है, 2.25। अप्रोक्सीमेटली पूरे साल में टोटल प्रॉफिट कितना होगा, आपको टोटल इनकम कितनी होगी, तो यू हैव टू एस्टिमेट। यू कैन नॉट बी फिक्स, आपको एस्टिमेट लगाना है। सपोज आपका एस्टिमेट लगाया शुरू के महीने में अप्रैल में कि एक महीना में हमारा 1 लाख प्रॉफिट हो गया, तो पूरे महीने पूरे साल में हमारा 18-19 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल ईयर में हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैन बी अराउंड 18 लाख। तो यू हैव टू मेक एन एस्टिमेट। उस एस्टिमेट पे सपोज आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है से 2.4 लाख। फाइन।
अब आपको एस्टिमेटेड फिगर पता लग जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड इनकम। अब ये 2.4 लाख है, ये आपको डिपॉजिट करना है, इकट्ठा डिपॉजिट नहीं करना, वन शॉट पे नहीं करना, यू हैव टू डिपॉजिट इट स्लोली स्लोली। हाउ विल यू डिपॉजिट? You will deposit in installment. This is called advance tax. Fine. It has to be deposited into the same financial year. Advance tax means paying tax to the government in advance. आपको फाइनेंशियल ईयर के बाद में पे नहीं करना, एडवांस में पे करना है। Okay? Am I clear on this? कोई doubt? Yes, sir. So for example, your total liability is 100, उसका 15% लोग और आ रहे हैं बट मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओके ओके, सो सपोज द एस्टिमेटेड लायबिलिटी जो हमारा है, जो हमने कैलकुलेट किया है, दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड ऑन ड्यू डेट्स। द फर्स्ट ड्यू डेट वुड बी 15th of June. Second, this is called advance tax, 15th of September, 15th of December and 15th of March. Suppose आपकी total tax liability is say 100, so 100 has to be deposited by 15% of total liability, 30% of total liability, 30% of total liability, and before 15 March you have to deposit 25% of the liability. So you have to deposit the tax in small installment, and you have to deposit into the same financial year. You don't have to wait. आपको दूसरे साल का वेट नहीं करना, आपको 15 मार्च से पहले 31 मार्च से पहले सारा टैक्स पे करना है। तो दिस इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। एडवांस मीन्स यू आर पेइंग टैक्स इन एडवांस, you are not waiting for the end of year, you are paying in advance. आप पहले ही टैक्स पे कर रहे हो। फाइन, इसमें कोई डाउट? What do you mean by assessment year? Can you tell me? Can somebody tell me what is the meaning of assessment year? The year in which we file the return and In which we ITR file filing. the return, income tax return. Income tax return. Income tax return. Fine, correct. Because जो next year है assessment year, assessment means a type of checking. Income tax वाले आपकी checking करेंगे, ठीक है? What do you mean by income tax return? Income tax return का क्या मतलब होता है? Can somebody tell me? Very simple. Income tax return, ITR, इसका meaning क्या है? हाँ, करके आप बता सकते हैं? Can you tell me? Hello. हाँ, आप लोगों ने सुना है? What is Sir, income not tax? clear idea. No clear idea. आपको कुमार प्रफुल्ल, आपको सर एक्चुअली सर जो हम इनकम रेज करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसकी जो फाइलिंग करते हैं, उसका मतलब ये इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये जो रिटर्न का क्या मतलब?
Are you returning something? No. Let me tell you. See, इनकम टैक्स रिटर्न का क्या मतलब है? रिटर्न को वर्ड भूल जाइए, आप बोलिए इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन। इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन, आपको सारी अपनी इंफॉर्मेशन, आपकी इनकम की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। किसको देना है? इनकम टैक्स ऑफिसर। कैसे देंगे? आप पेपर पे लिख लीजिए, आपका नाम, आपका ईमेल, आपका बैंक अकाउंट, आपकी टाइप ऑफ इनकम, आपका टैक्स, एवरीथिंग यू कीप नोटिंग, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक उनका एक फॉर्मेट है, उसके अंदर लिख लीजिए, फॉर्म है उसके अंदर भर लीजिए, भरने के बाद उनको दे दीजिए। दिस इज कॉल्ड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सारी इंफॉर्मेशन आपको देना है। आप चाहें तो कोई इंफॉर्मेशन छुपा भी सकते हैं, लोग सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताते, आपकी चॉइस है, आप सारी इंफॉर्मेशन दीजिए या नहीं दीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न का मतलब है वी आर फाइलिंग, वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनकम टैक्स में प्रोसीजर क्या है कि मुझे खुद को सेल्फ असेसमेंट करना है, खुद को चेकिंग करना है, खुद का टोटल लगाना है, और इनकम टैक्स वालों को इंफॉर्मेशन देना है। इफ यू वांट टू हाइड समथिंग यू कैन हाइड, इफ यू डोंट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन डोंट गिव। जो इंफॉर्मेशन आप देंगे, इंफॉर्मेशन उनको वही पता लगेगा, बाकी उनको कुछ नहीं पता लगेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, पहले लोग मैनुअल देते थे। मैनुअल का मतलब लिखने के बाद यू राइट इट डाउन एंड गिव इट टू इनकम टैक्स। उसके बाद अब ऑनलाइन आ गया है, ऑनलाइन में यू कैन फाइल द रिटर्न ऑनलाइन। आप ऑनलाइन एक्सेल शीट के अंदर डिटेल बना लीजिए और फाइल कर दीजिए। फाइल कहाँ करेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर। यू कैन अपलोड, नंबर वन, you can upload with the help of Excel sheet, or you can upload with the help of taxation software. टैक्सेशन सॉफ्टवेयर की वहां जरूरत पड़ती है जहां पर सीएज हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो खुद अपनी रिटर्न, क्लाइंट्स की रिटर्न अपलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, जो हम लोग आपको बता देंगे इस पूरे कोर्स में। आप इंडिविजुअल हैं, एक या दो लोगों की फाइल करना चाहते हैं रिटर्न, तो यू कैन यूज द एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में आप सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, फीड करिए और अपलोड कर दीजिए। एनी डाउट? असेसमेंट ईयर हम जैसे बात कर रहे हैं, 18-19 हमारा प्रीवियस ईयर है, 19-20 इज द असेसमेंट ईयर। ये वाला 19-20 आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं, यू कैन फाइल द आईटीआर बिफोर 31st ऑफ मार्च, सॉरी बिफोर 31st ऑफ जुलाई। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न ये फाइल करना है। एंड इफ यू आर कंपनी नॉन इंडिविजुअल, आपको 30 सितंबर से पहले पहले करना है। ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट? नो। तो आपको टैक्स डिपॉजिट करना है इन द फाइनेंशियल ईयर, यू हैव टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, और रिटर्न फाइल करना है आपको इन द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मींस ईयर ऑफ चेकिंग। आपका जिस दिन चेकिंग जिस साल में होगा, पहले साल में आप इनकम अर्न करिए, सेकेंड ईयर में अपनी इनकम को चेक करवाइए। कौन चेक करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कैसे चेक करेगा? आप सारी इंफॉर्मेशन उनको देंगे। ठीक है, कैसे देंगे? मैनुअल भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बोथ फेज आर देयर। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर।
सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टीडीएस, जो मैंने आपको पहले बताया, आपका एम्प्लॉयर टीडीएस काट लिया, एडवांस टैक्स आपको खुद डिपॉजिट करना है, एक होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कैन एनीबॉडी टेल मी? कोई बता सकते हैं? आप बता सकते हैं प्रफुल्ल, व्हाट इज द सेल्फ असेसमेंट टैक्स? एनीबॉडी, कैन यू टेल मी व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स? मैं बताता हूं आपको। देखिए, पहले आपको एडवांस टैक्स पे करना है ऑन एस्टीमेट बेसिस, ठीक है? आपने एस्टीमेट लगाया 100 का और आपने पे कर दिया, बाद में आपको पता लगेगा अरे ये 100 नहीं था, हमारा टैक्स तो 105 है। बाद में हमें पता लगा एक्चुअल टैक्स हमारा 105 है, बट हमने एडवांस टैक्स कितना डिपॉजिट किया? 100। तो जो बैलेंस है, बैलेंस अमाउंट हम 31 मार्च के बाद भी कर सकते हैं। So that balance amount will be deposited, it will be considered as सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, जो हम बाद में जमा करते हैं उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स। थोड़ा सा जो बच जाएगा टैक्स हम बाद में जमा करेंगे, उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स करेंगे। जो साल के अंदर जमा करेंगे उसको एडवांस टैक्स, और जो साल के बाद में थोड़ा सा जमा कर देंगे उसको हम सेल्फ असेसमेंट है। क्लियर? अब डिपॉजिट करने के, उसमें डिपॉजिट करने के चालान होते हैं, टैक्स डिपॉजिट करने के चालान होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप टीडीएस जमा करा रहे हैं, चालान नंबर 281, चालान का मतलब फॉर्म नंबर। यस सर, 281। अगर आप एडवांस टैक्स जमा करा रहे हैं तो चालान नंबर 280। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा रहे हैं तो भी चालान नंबर 280। ठीक है। 280 डिपॉजिट करने के, 281 डिपॉजिट करने के दो तरीके हैं, मैनुअल या ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको बाद में तरीका बता देंगे। अगर आप मैनुअल जमा करते हैं तो आपको चेक बनाना पड़ेगा और चेक के ऊपर ये लिखना पड़ेगा। ये क्या लिखना पड़ेगा? सिंडिकेट बैंक अकाउंट इनकम टैक्स। अगर आप सिंडिकेट बैंक में जमा करा रहे हैं, आपके आसपास कोई भी बैंक हो सकता है, वहां जमा कर दीजिए। आपके पास एसबीआई है तो चेक के ऊपर लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनकम टैक्स। ठीक है, जब आप चेक बनाएंगे तो उसके ऊपर लिखना है हमें सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक अकाउंट इनकम टैक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इनकम टैक्स, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट इनकम टैक्स। तो आपको बैंक का नाम लिखना है, साथ में लिखना है अकाउंट इनकम टैक्स। वो चेक बनाइए, चालान नंबर या फॉर्म नंबर 281 फिलअप करिए। ये 281 ये आपको बाद में फिलअप करवाएंगे। ठीक है, ये चालान नंबर 281 फिलअप कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी सेम रहता है, आपको लॉगिन करना है बैंक अकाउंट में एंड यू हैव टू पे टैक्स, एडवांस टैक्स बाय यूजिंग चालान नंबर 281 और 281। यस सर, आप डन दिस। वो प्रोसीजर आपको पूरा बता देंगे, उसके हम प्रॉपर प्रोसीजर भी बताएंगे आप लोगों का। उसका वीडियोस भी अवेलेबल है, यू कैन वॉच वीडियोस। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं उसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी हैं, और बाद में फिर आपको एक एक करके लाइव भी कराएंगे उसमें। ठीक है, अच्छा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। वन इज, आप लोगों ने ये 26 एस का नाम सुना? व्हाट इज 26 एस? कोई बता सकते हैं? गार्गी, आप बता सकते हैं व्हाट इज 26 एस? वो टीडीएस का स्टेटमेंट रहता है जो पूरे ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है उसका पूरा स्टेटमेंट निकलता है हमारा। इट इज कॉल्ड टू 26 एस। 26 एस का फुल फॉर्म क्या है? नो आइडिया सर। 26 अकाउंटिंग स्टेटमेंट।
क्या है? अकाउंटिंग statement. स्टेटमेंट. Statement. हाँ. What is the full form of PAN? PAN. Permanent account number. अकाउंट नंबर. अकाउंट नंबर का मतलब इनकम टैक्स के पास आपका अकाउंट चल रहा है, खाता चल रहा है. इनकम टैक्स वाले दे आर वेरी स्मार्ट, उन्होंने आपका अकाउंट ओपन कर दिया, परमानेंट अकाउंट नंबर. whatever tax you are paying will be reflected, whatever tax you are taking as refund will be shown. कहाँ पर शो होगा? अंडर अकाउंटिंग स्टेटमेंट 26A. everybody can see this 26A provided you have the PAN number. आप इनकम टैक्स एसएससी हैं, आप पैन नंबर है, आप मेंबर बन जाइए, आप लॉग इन करिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे विद हेल्प ऑफ योर पैन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर पासवर्ड. व्हेन यू लॉग इन you can view form number 26AS. you can view that. it will show all the tax. TDS नहीं, even if you deposit advance tax, even if you deposit self assessment tax, it will be shown. तो पूरे साल में आपने कितना टैक्स डिपॉजिट किया, यू कैन सी इन द फॉर्म 26AS. आई होप दिस इज क्लियर. इसमें कोई डाउट आप लोगों को? एनी डाउट? अच्छा, तो अभी आज हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया है कि बेसिक इनकम टैक्स क्या है, सोर्सेस क्या है, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, आपको टैक्स कब जमा करना है, एडवांस कैश कब जमा करना है, व्हाट इज TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ये बेसिक टर्म्स हैं जो इनकम टैक्स में यूज होती हैं. ठीक है. अभी जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे, ITR भरेंगे, उसमें हमेशा असेसमेंट ईयर लिखा होता है. क्या लिखा होता है? असेसमेंट ईयर. यू हैव टू ऑलवेज मेंशन असेसमेंट ईयर एवरीवेयर. आपको फाइनेंशियल ईयर कहीं भी मेंशन नहीं करना. आपको हमेशा कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, ITR फिलअप करेंगे, यू विल राइट असेसमेंट ईयर. फाइन. आप लोगों को इनकम टैक्स रेट्स पता है? आई होप. डू यू नो इनकम टैक्स रेट्स? आर यू अवेयर ऑफ? नो. इनकम टैक्स रेट अभी हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, अभी इसको छोड़ दीजिए, 60 to 80 वाले को छोड़ दीजिए, नॉर्मल केस डिस्कस करते हैं. नॉर्मल केस, ठीक है, नॉर्मल केस डिस्कस करते हैं. एक तो है आपको 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं देना, आपको टैक्स नहीं देना. सॉरी, अगर आपको इनकम इज अप टू 2.5 लाख, यू डोंट हैव टू पे टैक्स. वन थिंग इज क्लियर. सेकंड, 2.5 लाख से 5 लाख है, रेट चलता है 5%. रेट कितना चलता है? 5%. 5% ऑफ व्हाट? 2.5 लाख से जो ऊपर है इनकम है. उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक कितने इनकम है, उस पर टैक्स कितना बनेगा? 20%. अभी 1 अप्रैल से 2020 से उन्होंने रेट्स कुछ चेंज किए हैं. उन्होंने 2 स्लैब्स बना दिया, 2 अलग अलग बना दिया. एक लोग पुराना टैक्स सिस्टम फॉलो करेंगे, एक लोग नया टैक्स सिस्टम फॉलो करेंगे. ठीक है. तो दिस इज द ओल्ड वन, दिस इज द ओल्ड वन. टैक्स रेट 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना है. ठीक है. ये स्लैब रेट चलते हैं इन केस ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल. अगर आपकी इंडिविजुअल की इनकम है तो ये टैक्स रेट फॉलो करते हैं. 5 लाख तक इनकम बनती है, इनकम टैक्स बनता है 12,500, 12,500. बट इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो आपको पूरे के पूरे कर के ऊपर छूट रहे, यानी कि 12,500 आपको टैक्स पे नहीं करना अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की. इफ इट इज मोर देन दैट, अगर उससे ज्यादा है तो आपको वो टैक्स में छूट नहीं मिलती. वन थिंग इज क्लियर. अगर मैं बात करूं
फॉर एग्जाम्पल 4,50,000. Can you tell me what is the income tax payable on this amount? 4,50,000 पे आप बता सकते हैं कुमार? Can you tell me? सर ये तो नील होगा इस पे, नील होगा ना, नए से लग रहा है। नहीं, टैक्स कैलकुलेट तो करेंगे, नील होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, बट 5% के हिसाब से टैक्स कितना बनेगा? टैक्स 5% के हिसाब से मैं क्यों टैक्स कैलकुलेट करा रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। सर 22,500। 22,500 कैसे निकाला आपने? 5 लाख तक 12,500 बनता है। यार क्या हाँ सर वो, हाँ मैं समझ गया सर, वो 22,500 के बाद वो 5% निकालने के बाद उसमें डिवाइड भी मंथ वाइज करना होता है। एक वो मिनट, टीडीएस रेट नहीं, आप सुन लीजिए। आपको ये तो पता है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स हमें नहीं पे करना, एक चीज को तो याद कर लीजिए, ठीक है? अप टू 2,50,000 नो टैक्स, ठीक है? वन थिंग, मैं 2,51,000 की बात करता हूँ। 2,50,000 तक तो नहीं पे करना, 2,51,000 तक हमारा टैक्स बनता है 5%। 5% हम किस चीज के ऊपर देंगे? जो 2,50,000 से ऊपर का अमाउंट है, बिकॉज 2,50,000 तक जीरो है, ऑल जीरो। तो 251 पे कितना आएगा? एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 1,000। इस पे कितना बनेगा? 5%। कितना टैक्स आ गया? कितना टैक्स आ गया? 50 रुपीज, ठीक है? इस कैलकुलेशन को ध्यान रखिए। सपोज द अमाउंट इज 2,75,000, इस पे कितना टैक्स बनेगा? दागी, कैन यू टेल मी? योर वॉइस इज, आई एम नॉट ऑडिबल, आई एम नॉट। हाँ ओके हेलो। हाँ बोलिए। हाँ 25,000 पे 5%, मतलब अमाउंट बताइए। 1250 1250 1250, 1 करेक्ट? 1250 हाँ, 1250 हाँ बिकॉज 2.5 लाख से ऊपर 20 कितना है? 25,000 है 25,000। या 25,000। इसके ऊपर हम 5% कैलकुलेट करेंगे। That comes to 12. Fine. Suppose amount is 3,90,000. Then can you tell me again? आप थर्ड पार्टिसिपेंट, आई डोंट नो क्या नाम है आपका, आप अपना नाम भी आपने शेयर नहीं किया। हाँ, इस पे 3,90,000 पे कितना टैक्स बनेगा? कैन यू टेल मी? सर 1,40,000 के हिसाब से 7,000 पड़ेगा। 7,000 एग्जैक्टली। 1,40,000 के ऊपर हम लोग 5% निकाल लेंगे, 7,000 आ गया। सिमिलरली इफ आई से 4,50,000 पे कितना बनेगा? से 4,95,000 पे कितना आ जाएगा? इस पे गार्गी, कैन यू टेल मी? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। Uh, 12,250 Okay, just a minute. हेलो 12,250, just a minute. Now there is one question from somebody who has this I'm not able to see the fourth one. उनके पास Galaxy J7 है, उनका कोई डाउट है तो उनका मेरे पास वो आ नहीं रहा। आई एम नॉट एबल टू, उनका मेरे पास वॉइस नहीं आ रहा। हेलो, ये फोर्थ पार्टिसिपेंट है कोई गैलेक्सी के? हाँ अच्छा, ये आ गया। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? व्हाट इज योर डाउट? टेल मी। नहीं सर, नहीं, ऐसे ही मैंने हाय बोला, बस कुछ भी नहीं ओके है। ओके एनी डाउट टिल डेट? अभी तक कोई अभी डाउट? टिल नहीं सर, कुछ नहीं। अभी थैंक कोई यू। डाउट? ओके।
नहीं। तो अच्छा मेरे को अच्छा अभी आपने मैं पूछ रहा था कि व्हाट इज द अमाउंट 4,95,000 पे गार्गी क्या कितना अमाउंट होना चाहिए 12250 1 2 12250 इज इट करेक्ट 2 इसमें से 245 कर 250 कम कर देते 245 पे 5%. किसी को डाउट अभी डाउट है अभी देखिए 2.5 लाख तक आपका कुछ नहीं है तो 2.5 लाख कम कर दीजिए द बैलेंस इज 2,45,000 245,000 45 का 5% कर लीजिए यू विल गेट 12,250 Sir, one query. Yeah. ठीक है एनी डाउट Sir, I have one query. हाँ सर अगर मान लो हमारा जैसे जो भी हमारा इनकम होता है वो 10 लाख से अब है हाँ हाँ उसमें से भी हम 2.5 लाख एग्जाम करके बाद बाकी पे टैक्स लगा अभी चल रहे हैं वहीं तक अभी 10 लाख तक अभी पहुंचेंगे 10 लाख तक अभी पहुंचेंगे ठीक है अभी मैं इसको 5 लाख कर देता हूँ तो 5 लाख पे कितना अमाउंट आएगा 12,500 12,500 सिंपल बिकॉज द डिफरेंस इज 2,50,000 50,000. Yeah. ठीक है इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को ओके Nice. suppose if I say the amount is 6 lakhs अब इस जो 12,500 आपने पहले कैलकुलेट किया है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा 5 लाख पर 12,500 बनता है हमारा इसको माइंड में अच्छी तरह से फिट कर लीजिएगा यू शुड रिमेम्बर ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं 5 लाख 1,000 कर देते हैं ठीक है यानी कि 5 लाख से 1,000 ऊपर है आपका फाइन अब आपका टैक्स कितना बनेगा कैन समबडी कैलकुलेट सर 13,500 13,500 नहीं सर सॉरी 13,500 12,500 प्लस 20,000 1 लाख पे 1 लाख या फिर 1,000 20% लगाना होगा ना कोई बात नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए 5 लाख तक तो आपको कोई डाउट नहीं है 12,500 नहीं, तो बना हुआ हाँ, ठीक है हाँ 5 लाख से ऊपर कितना है 1,000 कितना है 1,000 है, sir. 1,000 हाँ उससे ऊपर हमारा है 1,000 उसका हम रेट कितना लेंगे 20% 20% 20% तो 1,000 का 20% कितना हो गया 200. 200 रुपए 200 200 तो 200 ये हो जाएगा प्लस 12,000 हो जाएगा 500 12,700 हो जाएगा ठीक है वो सर मैं कैलकुलेट कर लिया था कोई बात नहीं अच्छा अभी इसको हम बात करते हैं 6 लाख के ऊपर आपका 10 लाख पे भी पहुंचेंगे अभी हम 6 लाख पे कितना अमाउंट बताएगा आप बता सकते हैं कैलकुलेट करके टेल मी 32,500 32,500 यस सर लास्ट में किसी को डाउट एनी डाउट 1 लाख का आ जाएगा डिफरेंस 5 लाख से ऊपर उसका 20% प्लस 32,500 20%. ठीक है 9 लाख का कर लेते हैं 9 लाख पे कितना होगा सबसे लास्ट में 92,500 92,500 एनीबडी एल्स इज इट करेक्ट सही है यस सर आप लास्ट में आप बताइए सही है आप लास्ट में जो है थर्ड पार्टिसिपेंट क्या नाम है आपका व्हाट इज योर नेम Murli hai sir. Murli so can you tell me Murli is it correct what is the amount of tax on 9 lakh income
नहीं 2.5 तो नील में चला जाएगा ना सर? हाँ हाँ, आप बताइए। हाँ हाँ ओके 2. अप टू 5 lakhs 12,500 5% हाँ, इसमें, यस यस यस। बाकी 4 लाख का 20%. नहीं, टेल मी द फिगर। To the 8. Yes sir. हाउ मच? 92,500 sir. 92,500. Fine. So up to 5 lakh it was 12,500. Next 12,500. 4 lakh पे 20%, the total comes to 92,500. ठीक है? Yes sir. Yes sir. Let us say 10 lakh. For 10 lakh, what should be the amount? What should be the amount on 10 lakh? What is the amount? 1 lakh. 1 lakh 12,500. 1 lakh. इसको 1 आप lakh. इसको 12,500. Just remember this. जी, sir. इसको याद कर लीजिएगा. Fine. That you should know. उसको प्रैक्टिस करके माइंड में फिट कर लीजिएगा. On 10 lakh, it is 1,12,500. Is it clear? Yes sir. Okay. Now अब आपका क्वेश्चन आ जाता है, हम 11 लाख पे आ जाते हैं. कितने पे आ जाते हैं? 11 lakh. फाइन. अब इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, भूलेगा मत. लेट मी कवर दिस. ठीक है, इसको आप याद रखिएगा. ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस. नाउ लेट अस मूव टू 11 लाख. 11 लाख में 10 लाख से ऊपर जैसे है उसका 30% लगेगा. कितना लगेगा? 30%. 30%. 30%. ठीक है. Can you tell me? Can anybody tell me what will be the amount? Sir, 1,42,500. Simple. Because 10 lakh, 11 lakh में extra कितना है? 1 lakh. 1 1 lakh. lakh. 1 lakh का percentage कितना चलेगा? 30%. 30%. That comes to 30,000. Okay. Now add 30,000 into this. This is the total figure. 1,40,000, 42,500. Is it clear? जी sir. Any doubt? Any doubt? No, sir. Fine. There is some noise going on. Now, on 11 lakh, the amount comes to 1,42,500. Fine. I hope on this is clear. Now, let us say for 15 lakh. What should be the amount? Can somebody tell me? 262,500. Yeah. 262,500. Let us see. Yes sir. Yes, sir. 5 lakh is extra. 150. 262,500. So I hope now everybody is clear on how to calculate tax. Fine. Any doubt? किसी को कोई doubt है? इसमें one small thing. I have to add another 4% extra. SS. कितना extra करना है? 4% on total tax. ठीक है? Let us assume. Let us calculate it. 15 lakh के amount के ऊपर multiplied by 4%. That comes to 10,500. This will be known as cess. Total tax would be this plus this. Sir, one question I want to ask. Tell me. So, what is the cess and why do we calculate on the total tax? See,
Usually what happen is government keeps all the slab same, 10%, 5%, 10%, 20%, 30% fixed slabs are. Suppose government needs some extra money, extra revenue, तो उसके पास दो तो ऑप्शन है, वन टू इंक्रीज द स्लैब और टू कीप द स्लैब फिक्स बट छोटा सा सेस अमाउंट लगा देते हैं एक्स्ट्रा, 1%, 2%, 3%. सपोज आपको नेक्स्ट ईयर हो सकता है कोविड का सेस लग जाएगा, कोरोना वायरस का सेस, ठीक है, इट कैन बी मे बी 5%, बट दे विल नॉट इंक्रीज द स्टैंडर्ड स्लैब्स. ठीक है, एजुकेशन का सेस लग गया, स्वच्छ भारत का सेस लग सकता है, कोविड का सेस लग गया, कारगिल वॉर हुआ था उसका सेस लग गया. तो देयर कैन बी मेनी स्मॉल रीजन टू लेवी दैट सेस. तो सेस लगाने का ये रीजन होता है. देयर कैन बी एनी रीजन. पेट्रोल के ऊपर सेस लगा दिया, ठीक है, हायर एजुकेशन के ऊपर सेस लगा दिया, सो दैट सेस से जितना पैसा कलेक्ट होता है दैट इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. अभी हम टोटल नहीं टैक्स सर, निकाल. एक हाँ क्वेश्चन सर. हाँ बोलिए. Sir, sorry to interfere. हाँ बोलिए. Now, it will be levied on total tax liability or in the income, I mean to say, total income. Just see, I am calculating. Just see. Now, Okay. 1,12,000. Just 5 lakh 15. Acha, this 2,62,500 is the final figure. Okay. At the income of 15, at the income of 15 lakh, let us say 15 at the income of 15 lakh, fine, we have the total tax. This is the total tax. Fine. 2,62,500. Okay. On which we have to add cess. On the tax we have to add cess. So this is the cess factor, extra. Now this is the total tax, original tax plus cess. So this is the total tax we have to pay. 2,73,000. This is the tax we have to pay on a total income of 15 lakh. I hope अभी आपको क्लियर हो गया टैक्स कैलकुलेट करना. सर तो सेस हमेशा 4% ही होता है, फिक्स्ड है. 4% होता है. आज की डेट में 4% है, पहले 3% था. अच्छा, हाँ पहले 3%. हाँ, हो सकता है कोविड के बाद वो 7% हो जाए. क्वाइट पॉसिबल. सर 5 to 7% होने का चांसेस तो लग रहे हैं. नहीं, यू नेवर नो. अभी कुछ नहीं कह सकते बट हो सकता है. ठीक है, चाइना के सपोज चाइना के साथ वॉर हो गया तो वॉर का सेस लगा देंगे. पहले ऐसा हुआ था, कारगिल जब वॉर हुआ था तो देट कारगिल सेस ऐसा हो जाता है. तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? एक छोटा सा चीज और. सपोज योर टोटल इनकम इज 15 लाख, यू आर अर्निंग ए सैलरी ऑफ 15 लाख. ठीक है, आपका टोटल टैक्स बन गया 2,73,000. ये का टोटल टैक्स बन गया. फाइन. मंथली सैलरी आपको कितना मिलेगा? लेट अस से 1.2. 1,25,000. दिस विल बी योर मंथली सैलरी. Okay. मंथली टीडीएस कितना बनेगा? मंथली टीडीएस Divided by 12 now, sir. divided by 12. Yeah. So 22,750 would be your TDS. This would be your TDS. Tax deducted at source. Fine. What would be your take home salary? आपकी take home salary क्या हो जाएगा? After deductions. After deduction, let us say take home. This is your monthly salary. Take home salary would be monthly. What would be your monthly take home salary?
1,25,000 minus the TDS deducted. 102,250. Yes, this would be your monthly take home salary. So out of this 125 lakh, the government, you are to paying tax to the government 22,750, and you are taking home salary is 1,02,250. इसमें कोई doubt है? Any doubt? No, sir. Everybody is clear? Yes, Fine. sir. One more thing. For example, you are working in a company not for the whole year but 10 months, only 10 months. Okay, you have joined in a company in the month of April, May को छोड़ दीजिए, जून में ज्वाइन किया. June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. So you work for 10 months only. Fine. So here your total salary is for 10 months, not for whole Yeah, year, 10 months. for 10 months. Okay. This is 1,50,000 per month. Okay. Fine. You worked only for Yes, 10 sir. months, but your total income is 15 lakh. Your accountant will calculate the tax. The tax will be same, 2,73,000. Fine. But now you have to deposit your tax, total tax in 10 installment, because 10 your months. working period is only for 10 months. Fine. Your monthly installment will be 27,300, not this one. Okay. Yes. Any doubt? Any No. doubt? Fine. Now, let us take an example that your monthly income is 1,50,000 for 10 months. Okay. Monthly income is 1,50,000 for 10 months. The total income is 15 lakh. Your monthly income is 1,50,000 for 10 months. What would be your take home? 1,50,000 minus Minus 27,000. 27. So this would be your take home. I hope this is clear. Let us take one example. Suppose after working for 1 month or 2 months, maybe you left the job, और कोविड हो गया, आपकी जॉब चली गई. ऐसा हो सकता है? Fine. You just work for 2 months only, just 2 months, and you left the job. For the whole year, no income. You were unemployed. You were not working anywhere. Fine. In that case, for 2 months salary, कितनी salary हो जाएगी 2 month की? 3 lakh. 3 lakh. 3 lakhs, sir. 3 lakh. 3 lakh. Total TDS कितना deduct हो जाएगा? 27,500. 27,300 multiplied by 2. Okay. Any doubt? Please ask if you have any doubt. 1 month salary is 1,50,000. 2 month salary is 3 lakh. 1 month TDS is 27,300. 2 month TDS is 54,600. Fine. Okay. Now your total take home would be 2 month salary take home would be 3 lakhs minus 2 months TDS, sir. yes, it comes to 2,45,400. Yes, sir. After working for 2 months, you left the job. You lost the job.
आपकी जॉब चली गई, फाइन, योर टोटल सैलरी इज फॉर 2 months ओनली 3 लाख, योर TDS डिडक्टेड, यानी कि दिस इज द अमाउंट you have paid to the government, 54,600. 600. This is the TDS amount you have Yeah. paid. In this case, since your total income for the whole year is only 3 lakh, only 3 lakh, 3 lakh. because you only work for 2 months in the whole year. You just work for 2 months. आपने सिर्फ 2 महीने काम किया पूरे साल में, तो आपका total income is 3 lakh. Total TDS deducted is 54,600. 600. Yeah. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर मेरी इनकम तो 5 लाख से कम है, मेरे को तो TDS बनना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अप टू 5 लाख आपको टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। तो अब आपको गवर्नमेंट क्या दे सकती है, यू कैन क्लेम द रिफंड, बिकॉज ये 54,600 इट हैज बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट, Yeah. ये गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। किसने डिपॉजिट किया? Employer. एम्प्लॉयर ने। So you can claim this as refund from government, but you will only get refund if you file the income tax return. If you don't file the income tax return, you will not get this. I hope this is clear. इसमें कोई yes. डाउट? नहीं सर, नहीं. अभी कोई डाउट आपको? No, sir. नो, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। 1.5 लाख रुपया पर मंथ है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं 2 months की जगह 4 month सैलरी। 4 month सैलरी कर दें? 6 लाख सर. हाँ, इसको 4 month सैलरी कर देते हैं। 4 month सैलरी कितना हो जाएगा? 6 लाख सर. कोई डाउट? 4 month का TDS कितना हो जाएगा? 1 मिनट. 1,09,200। 9,200. 1,09,200. Yes sir. Anybody has any doubt? प्रफुल आपको डाउट है कोई? अब यानी कि आपने 4 months काम किया, कितना टाइम काम किया? ओनली फॉर 4 months। आपका टोटल सैलरी कितना है? 6 लाख। आपका 6 टैक्स लाख। कितना कट गया? 1,09,200। 1,09,200. योर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। आपका 4 महीने के बाद छुट्टी हो गया। क्या हो गया? छुट्टी 4 महीने के बाद, हाँ, निकाल दिया, कोविड हो गया, ठीक है। Okay, 4 sir. महीने के बाद यू लॉस्ट द जॉब, ठीक है। यू ओनली वर्क फॉर द होल ईयर, यू ओनली वर्क फॉर 4 months, ठीक है। क्लियर? आपका टोटल इनकम कितना होगा? आपका कितना हो जाएगा? 6 लाख 6 सर. लाख, ठीक है। टोटल टैक्स कितना डिपॉजिट हो गया गवर्नमेंट के पास? 1,09,200. 1,09,200। एनी डाउट? Any No, doubt? sir. Gargi, can you tell me what is the tax payable on 6 lakhs? 6 lakhs का हमें टैक्स कितना बनता है? 12,500 plus 28, 32,500. यहाँ पर आ जाइए, 12,500 32,500 प्लस 20,000, 20,000. 32,500 बनेगा। कितना बनेगा? 32,500। 32,500. बैलेंस बट आपका डिपॉजिट कितना हो गया? 1,09,200। जी. तो बैलेंस आपको रिफंड मिलेगा। कितना रिफंड मिलेगा देख लेते हैं। दिस माइनस आपको 76,700 का रिफंड मिलेगा। Any doubt? If somebody has any doubt, they can ask. सर अभी ये 6 लाख में 5 लाख तक तो नील है ना सर? 5 लाख तक नहीं ले, लेकिन 5 लाख से ऊपर है तो सब कुछ देना है।
जी सर, वही ये बाकी का जो बचा हुआ 1 लाख है उसके ऊपर 5% लगेगा ना सर? नहीं, अभी हम नए टैक्स रेट की बात नहीं कर रहे, पुराने टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। 5 लाख तक ओके 5% है, 5 लाख से ऊपर 20% और 10 लाख से अच्छा ऊपर 30% है। अभी हम जो नए टैक्स अच्छा स्लैब्स हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम पुराना स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ओके हैज ये गिवन ऑप्शन, या either you can follow the old structure or you can follow the new structure. माने ये असेसमेंट ईयर 1920 का है ना सर, वही फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ, ओके ओके तो अभी आपको 4 मंथ्स के बाद कोविड का छुट्टी हो गया, आपने 4 महीने काम किया, 6 lakhs आपकी इनकम है, उस पर टैक्स बनता है 1,09,200। ये डिडक्ट हो गया, गवर्नमेंट ने, ये आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया 1,02,900, बट आपका बनता था 32,500, आपको बैलेंस रिफंड मिलेगा। ओके बिकॉज जब टीडीएस डिडक्ट होता है, दैट इज डिडक्टेड ऑन एस्टिमेटेड इनकम, estimated salary income. When you join any company, तो बोलेगा सर आपकी सैलरी कितना है, आप बोलेंगे 1,50,000। आप कितने महीने काम करोगे सर हमारे पास, आप बोलेंगे 10 months। तो वो एस्टिमेटेड इनकम निकालेगा, एस्टिमेटेड टैक्स निकालेगा और एस्टिमेटेड आपकी ईएम मतलब आपकी मंथली डिडक्शन बता देगा। ठीक है, एनी डाउट? तो अभी आपको इस हमने लेक्चर में कवर किया है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर क्या है, आईटीआर क्या है, आईटीआर का फाइलिंग डेट क्या है, टैक्स का रेट क्या होता है, आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है तो अलग उसका चालान है, इफ यू वांट टू डिपॉजिट एडवांस टैक्स इट हैज अ डिफरेंट चालान, you can deposit by check, you can deposit by online also. So in this session we have simply covered the normal basic things. So इसमें कोई आपको डाउट है तो you can ask, otherwise we will start the session in the next class. Anybody सर has any doubt? एक सर मैं मुरली हूँ हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए मुरली। सर एक बात है, ये सेस जो 4% है ना सर, ओके अभी नाउ एग्जिस्टिंग रेट है ये। यस जी सर, अभी क्या है ये सेस जो ना इसका कुछ अलग स्लैब है सर, अगर ये 1 लाख के ऊपर है तो इनका टोटल है? सैलरी की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ ओके सैलरी इनकम, जो भी आपका टैक्स आता है, वट एवर यू कैलकुलेट द होल टैक्स के ऊपर 4% निकालता है। अच्छा 4% डालना, कितना भी होना दीजिए। कितना भी हो जाए। ठीक सर एक क्वेश्चन है, जैसे भी आप बता रहे थे कि जैसे 1.5 लाख मेरी मंथली इनकम है 1.5 लाख या 1 लाख मेरी, हाँ 1.5 लाख या 1 लाख मेरी मंथली इनकम है, तो उसके हिसाब से साल का 12 लाख रुपया हो जाता है 1 लाख के हिसाब से। कौन सी इनकम ठीक है? है, तो सैलरी इनकम सैलरी इनकम 12 लाख हो गई पूरे साल का। ठीक है, पूरे साल की। और मैं फाइनली मैं कंपनी में काम किया और 3 मंथ ही काम किया उस पर। ठीक है, बट मैंने वो जो सैलरी, बट जो अकाउंटेंट और जो एम्प्लॉयर होगा वो तो 12 लाख के हिसाब से वो पूरे साल का 12 लाख से पूरे साल का कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से वो मेरा टीडीएस 3 महीने का, अगर हम 3 महीने काम करते तो 3 महीने का 3 महीने उस काट हिसाब लेगा। से ही काटेगा, उस हिसाब से काट लेगा, लेकिन वो उतना बनेगा नहीं, तो वो हम आईटीआर से रिफंड ले सकते हैं। वो आप आईटीआर से रिफंड कर सकते तो ऐसे मतलब मैं अगर कहीं भी मतलब अगर मुझे भी डिडक्ट करना होगा किसी का, तो मैं मेरी भी उसी बेसिस पे डिडक्शन मैं कर पाऊंगा। हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। आपको 1.5 लाख की आपकी मंथली सैलरी कितनी है? 1.5 लाख, 1.5 लाख, फाइन। ठीक है, आपने लास्ट में ज्वाइन किया, आपने कब ज्वाइन किया? दिसंबर भी निकल गया, जनवरी में ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया? जनवरी। तो जैन फेब मार्च आपको कितनी सैलरी मिलेगा? 4.5। 4.5। अब 4.5 इनकम तक आपका टैक्स नहीं बनता, तो नहीं आपका बनता, अकाउंटेंट नहीं काटेगा टैक्स। फाइन,
आपने सिर्फ 2 महीने काम किया, फेब मार्च लास्ट में, आपकी टोटल इनकम कितनी है? 3 लाख। एस्टिमेटेड इनकम कितनी है? 3 लाख। अकाउंटेंट विल नॉट डिडक्ट योर टैक्स। सर ये तो नए स्लैब रेट के हिसाब से ना। नया स्लैब रेट, अभी मैं नए स्लैब रेट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं पुराने स्लैब रेट की बात कर रहा हूँ। 5 लाख तक आपको टैक्स पे नहीं करना। पुराने स्लैब रेट में। हाँ, पुराने स्लैब रेट में अभी आपको 5 लाख तक टैक्स पे नहीं करना। 5 लाख 1000 सर हो ये जाएगा, 5 लाख 1000 हो जाएगा तब आपको टैक्स पे करना है। 5 लाख तक नहीं देना, 5 लाख से ऊपर हो जाएगा तब आपको टैक्स पे करना है, तब आपको टैक्स पे करना है। सर यहाँ पे नीचे एक है ना सर, अप टू ₹5 लाख नील। एग्रीड, अप टू 5 लाख ओके, नील। नीचे व्हाट अबाउट 5 ओके लाख सर, नीचे 1000? वही सर, नीचे देखिए ₹2,50,000 to 5 लाख 5% बोल के लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले की बात, इसकी बात करेंगे। वही थोड़ा ये हाँ, अभी इसकी बात करेंगे। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20,000 है, और 10 लाख से ऊपर 30,000 है। ओके। एक 2.5 लाख की स्लैब, कोई जीरो नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, 10 lakh above 30%. This is the old 30%, structure. वही। This is the old structure. You have to follow Okay, this sir. structure. अभी न्यू This स्ट्रक्चर one only, no, sir? हाँ, अभी अब न्यू स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, बट वी विल गिव अ कंपैरेटिव चार्ट। पहले हम ओल्ड स्ट्रक्चर Okay, को समझ ले, देन वी कैन अंडरस्टैंड द न्यू स्ट्रक्चर आल्सो। बट आपको पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। तो ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे ये आप जो बोल रहे हो 2.5 लाख से 5 लाख, ठीक है, तो 2.5 लाख तो नीले समझ में आता है। फिर आप बोल रहे हैं कि मान लो जैसे ये 4 लाख इनकम हुआ या 5 लाख इनकम हुआ या 5 लाख तक नील है, लेकिन 5 लाख 1000 तक टैक्स निकालेंगे कैसे? आप ये नहीं कहेंगे 5 लाख अगर हो गया तो सपोज 5 लाख 1000 है, तो खाली 1000 पे टैक्स नहीं देंगे, 5 लाख 5 लाख पे प्लस 1000 और 1000 मतलब 2.5 लाख का तक नील करेंगे या 2.5 लाख का कैलकुलेट करेंगे और 1000 का कैलकुलेट करेंगे। आपको ये दिया हुआ ना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5 लाख तक, पहले 2.5 लाख तो महंगे निकालेंगे, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 12,500 बनता है, 12,500 बनता है। अब 5 लाख से ऊपर Okay. कितना है? 1000, 20% है ना सर? उसका 20% 200 रुपये और दे दीजिए, तो 12,500 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 200 रुपये और दीजिए, मतलब 12,700 आपको देना है। 12,700 दे देंगे। 5 लाख से एक पैसा भी ऊपर चला गया तो आपको 12,500 देने ही देने हैं, साथ में और भी देना है। अगर 5 लाख तक है फिर कोई टैक्स नहीं देना। जहाँ आप 5 लाख से ऊपर करते हैं देन यू हैव टू। समझ गया, मतलब 5 लाख तक अगर कुछ भी होता है तो नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली। जैसे 5 लाख से ऊपर जाएंगे देन यू हैव टू। ऊपर जाएगा तो 5 लाख वाला भी तो देना ही देना है, और वो 1000 का जो देना, हाँ वो भी देना है। हाँ, ऐसा नहीं कि 5 लाख से 1 रुपया ऊपर चला गया, मान लिया 5 लाख प्लस 1 रुपया, 1 रुपये पे आप 20% देंगे, 20 पैसे प्लस 12,500 रुपये की देंगे। क्लियर? फाइन। तो 5 लाख तक कुछ नहीं देना, 1 रुपये भी फालतू हो गया तो सारा देना है। You have to pay the whole amount. ओके सर। Doubt clear? Any other doubt? नो सर। So I think this is enough for today. So we can close the session. If anybody has a doubt, they can ask. Otherwise, we'll close the session. Fine. सर वो क्वेरीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करना होगा ना सर? हाँ, वो आप श्वेता से बात कर लीजिएगा। What she will give the batch. She is the person who the batch is create करेगी। जब भी ज्वाइन करना है आप बता दीजिएगा, वो बैच क्रिएट करके विल स्टार्ट द सेशन। एक्चुअली मुझे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। हाँ, पहले हम इनकम टैक्स कवर करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन कैसे करना है, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज करनी है वो हम लोग डिस्प्ले करके दिखा देंगे।
प्लस हम लोगों का वीडियो रिकॉर्डेड भी है, वो भी आपको हेल्प दे देगी, प्लस लाइव सेशन भी हो जाएंगे। उसके बाद जीएसटी के सेशन होंगे। इनकम टैक्स में लगभग 14 क्लासेस हो सकती हैं, 12 to 14 क्लासेस, राइट? एंड देन जीएसटी में 8 to 10 क्लासेस, the whole topics would be covered. Plus you would be given, everybody would be given online access to the recorded videos वो भी आपको हेल्प करेगा। सर आप वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप लोग ये नहीं करते? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं, हम लोग कस्टम्स ड्यूटी? नहीं, हम लोगों का वो रहता है इनकम टैक्स, जीएसटी, देन स्टॉक मार्केट्स, देन टैली, देन busy, then your QuickBooks, import export में will be fine. ओके सर। Okay then, all the best. ठीक है सर, थैंक यू। Thank you, sir. जी सर।